heard about this term electromagnetic wave? अगर है तो फिर then I will start with very basic. Otherwise, at least I'll start with that from grade 12 agenda. Is there anyone who has not heard about this term electromagnetic wave? Everyone has heard, right? Okay. So that means you have heard about term wave and you know electromagnetic wave. Can you give me an example of electromagnetic wave? Radio waves? ADCs. Yes. Light? Right? So entire spectrum that we get from sun, right? Out of that spectrum, there's one part which we call visible light, जिसमें red color से लेके आके violet तक band रहता है. That is also part of a bigger spectrum of electromagnetic waves that we receive from sun, right? All the days. ठीक है. So इन सारी electromagnetic wave की कुछ basic properties हैं. But before we want to go there in the properties, first let's understand कि wave और electromagnetic wave how they are connected. Okay. Electromagnetic, अच्छा wave, अगर हम wave की बात करें, so wave की definition क्या है? It's a periodic disturbance which propagates in a medium. For example, if I am talking something, you are able to hear. This is sound wave. I am disturbing the air particles which are near to me, and those particles are disturbing the next and the next, like that you are able to hear what I am saying, right? That is a sound wave. So what is getting disturbed here? Air molecules, air particles. That is a medium of communication. So wave means there is some disturbance, there is some periodic disturbance, right, which is traveling in a medium. Now electromagnetic wave में what is that which is getting disturbed and what is getting transferred from one place to other place? ये भी wave है ना, तो wave मतलब कोई चीज तो चल रही है in a medium. So any guesses when we say electromagnetic wave? So what could be traveling? Electrons, yes. और कुछ? Electricity, okay. Small currents. Small currents, okay. Anyone else want to take a shot at it? Heat, okay. I'll take it. Yes, it's not completely incorrect. Guys, name is two things. Electromagnetic wave. That means it's a periodic disturbance of or periodic oscillation of electric field and magnetic field propagating in a medium together. क्या वेव में क्या चल रहा है? Oscillating electric field and an oscillating magnetic field, and they are moving in a medium together. And the beauty is that when electric field and magnetic field wants to propagate together, they don't need a supporting medium. I mean, if the medium is there, it's okay. It's okay, they can travel in the medium also. But if nothing is there, it's just pure vacuum, even then these waves can travel. कैसे? जब आपने एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं वेव का, ठीक है, सबसे पहले आपको वेव पढ़ाया गया होगा किसी भी स्टैंडर्ड पे, तो आपको एग्जांपल दिया गया होगा कि यू टेक अ रोप, you tie the rope one end on a wall and you give a jerk on the other end and there's a wave, right? So you have a source which is your hand which is giving a jerk, right? And basically if you keep giving this jerk, this wave will keep propagating. So there has to be an energy source at the end of the day. Nothing comes for free. So if this electric field and magnetic field are going together ahead, so who is the source? From where actually this starts? हम लोग बोलते हैं सन से इतना बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम एवरी आवर एवरी सेकेंड वी रिसीव. सो who is sending this, right? So understand at a very high level, any oscillating charge, what did I say? Oscillating charge.
or to be more generic, any accelerating charge. Accelerating charge produces EM wave. मीन्स अगर आपको किसी ने पूछा लाइफ में क्वेश्चन, अगर एमसीक्यू में आया, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, व्हाट इज द एनर्जी सोर्स, सो समवेयर अगर आप खोदोगे उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, you will try to figure out from where it is coming. At the end of the day, you will find there is electron or proton or some charge which is either accelerating and or oscillating. Even oscillation is kind of a acceleration. आपने पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन, उसमें एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट, रिमेंबर. सो इवन ऑसिलेशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन. तो ऑसिलेटिंग चार्ज या फिर एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. होता क्या है टिपिकली, जैसे आप सन का केस ले लो, सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही है, सो राइट. सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स, दिस इज वन सिंपल एग्जांपल व्हिच कैन रिलेट. लेट्स से इज अ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एंड लेट्स से देयर इज वन ऑर्बिट, एंड इन दिस ऑर्बिट द सिंगल इलेक्ट्रॉन इज लेट्स से रोटेटिंग, ठीक है. मेनी टाइम्स बिकॉज ऑफ द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड और एनर्जी रिलीज, कुछ केमिकल प्रोसेस होते हैं वो जो हमारे एजेंडा नहीं है, दिस इलेक्ट्रॉन गोज टू अ हायर स्टेट ऑफ ऑर्बिटल. आप लोगों ने केमिस्ट्री में शायद ये पढ़ा भी होगा. नॉर्मली ये अपने ग्राउंड शेल, फर्स्ट शेल में रहता है, लेकिन अगर इसको थोड़ा एनर्जी दी जाए तो ये थर्मली एक्साइट हो गया या इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइट होकर एक हायर स्टेट में जा सकता है. जब ये हायर स्टेट से वापस आता है तो इट नीड्स टू गिव इट बैक, जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी इट हैज टू रिलीज, बिकॉज ये हायर स्टेट के पास, इसके पास मान लो 10 जूल एनर्जी थी, यहाँ की एनर्जी मान लो 8 जूल है, सो डिफरेंस कहीं तो जाएगा, एनर्जी इज नॉट लॉस्ट. सो गाइज जब भी ऐसा होता है, इट कम्स बैक फ्रॉम हायर टू लोअर, इट एमिट्स अ EM वेव. और ऐसा कुछ प्रोसेस सन में मिलियन एंड बिलियन ऑफ ईयर्स से चल रहा है, आपको कंटिन्यूअसली EM वेव्स मिल रही है. दिस इज वन एग्जांपल. देयर आर अदर एग्जांपल्स ऑफ EM इंजेक्शन एज वेल. जब भी कोई न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट होता है, कोई न्यूक्लियस है हाइड्रोजन एटम का, डिसइंटीग्रेट हुआ, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बट गए, या फिर दो बड़े न्यूक्लियस मिलके कंबाइन हो गए, जब भी इस तरह की कोई रेडियोएक्टिव प्रोसेस होती है, तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये रिलीज होती है. सो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि देयर हैज टू बी अ सोर्स, एंड एट द एंड ऑफ द डे द सोर्स हैज टू बी दिस, एन ऑसिलेटिंग और एक्सिलरेटिंग चार्ज. ये क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई बोर्ड में 1 मार्क के लिए, ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए चीज. अब हमको ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो एक बार इसने ऑसिलेट किया और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी, वो आगे कैसे बढ़ रही है ये थोड़ा हमें समझना. हाउ डज इट प्रोपगेट एंडलेसली फ्रॉम सन लेट्स से टू अर्थ, हाउ डज इट प्रोपगेट. तो थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं, क्योंकि ये बैकग्राउंड क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू जस्ट क्वेंच योर क्यूरियोसिटी, राइट. सो एक बंदा था बड़ा काफी फेमस साइंटिस्ट उस टाइम का, मैक्सवेल. पूरा एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो पूरा सागा है, ठीक है, कैन बी एट्रीब्यूटेड, ही इज द फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. कि इनका एग्जिस्टेंस, इनका प्रोडक्शन, इनकी एनालिसिस ऑल स्टार्टेड विद दिस गाय मैक्सवेल. इसने ये बोला कि मिस्टर फैराडे सेड अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस EMF. फैराडे ने ये बोला था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस EMF. A changing magnetic field produces, अच्छा EMF क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वे कनेक्टेड है. भाई EMF आ रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस इसका मतलब स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो इसे कि ही सेइंग कि अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड. This was a statement from and proven statement from Faraday.
राइट। इसने बोला कि लाइफ एंड नेचर फॉलोज सिमेट्री। आई डोंट, जब इसने बोला था उस टाइम ये क्लेम किया था, बोला था कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि नेचर फॉलोज सिमेट्री। तो अगर फैराडे का ये कहना है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, सो आई कैन क्लेम विदाउट एनी प्रूफ कि अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। This was a statement from Maxwell. अब कहानी देखो कितनी बढ़िया हो गई। अब जरा स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से समझो कि ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल फिनोमिना है ये, कि अगर तुम किसी तरीके से इन दोनों में से किसी को इनिशिएट कर पाओ, वन टाइम एफर्ट, इफ यू आर एबल टू इनिशिएट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड or a changing electric field, what will happen? Magnetic field change होगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। अब चूंकि ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वापस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और फिर वो वापस मैग्नेटिक फील्ड फिर से इसको प्रोड्यूस करेगी, और फिर इसको ये प्रोड्यूस करेगी। एंड दिस इज द वेव फिनोमेना। मतलब एक बार आपने ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट कर दी तो ये आगे बढ़ती रहेगी। दे विल बी सेल्फ सस्टेनिंग टू ईच अदर। मैं चेंज कर रहा हूं, आप आगे बढ़ रहे हो, फिर आप आगे बढ़ रहे हो, तो फिर मैं चेंज हो रहा हूं, तो फिर मैं भी आगे बढ़ रहा हूं। तो मतलब ऐसा है कि दो फ्रेंड वैसे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक बार एक कोई आगे बढ़ गया तो दूसरे भाई कदम खींचेगा, फिर वो एक कदम आगे जाएगा, फिर ये वाला एक कदम आगे जाएगा, इसको पीछे आगे पहले वाले को खींचेगा, और ये चलता रहेगा फॉर एवर अनलेस अंटिल दे गेट एब्जॉर्ब्ड समवेयर इन सम फॉर्म ऑफ हीट और सम एनर्जी फॉर्म। इट हैपेंस। ऐसा ही कुछ होता है जब सन से हमारी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होकर स्टार्ट होती है वहां पे, और ये चलती रहती जब तक कि वो हमारे अर्थ की सरफेस पे नहीं पड़ती है और वो एब्जॉर्ब होती है इन फॉर्म ऑफ हीट और इन फॉर्म ऑफ लाइट होते हैं। ओके, दिस इज अ वेरी दिस इज अ PhD टॉपिक गाइस। ओके, ऑब्वियसली वी आर जस्ट स्क्रैचिंग द सर्फेस, नॉट इवन स्क्रैचिंग द सर्फेस, बट एटलीस्ट यू कैन रिलेट कि ये होता क्या बिहाइंड दिस, राइट। तो दोनों चीजें चेंजिंग हैं और दूसरे को सेल्फ सस्टेन कर रही है। अभी इस चीज का हमारे पास प्रूफ है, राइट। इस चीज का हमारे पास प्रूफ है, ठीक है। ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। फैराडे ने जितने एक्सपेरिमेंट किए हमको मालूम है। हमने AC जनरेटर बनाया हुआ था। AC जनरेटर इसी फिनोमेना पे काम करता है। वी हैव चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड वी हैव जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका तो प्रूफ था, बट इसका प्रूफ नहीं था। तो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इसी बंदे ने दिया। इसने क्या किया, इसने एक बहुत छोटा एक्सपेरिमेंट किया। एक कैपेसिटर लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैसा भी कैपेसिटर, ठीक है। ये आपको बस समझने में, इसको आप समझ जाओगे, इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, बट आपको समझने वाली बात है। एक बार दिमाग में चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कैसे बना सकता हूँ। अब मैं इस कैपेसिटर, ये अनचार्ज्ड है, दिस इज इनिशियली अनचार्ज्ड, ठीक है। इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया या किसी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, और ये अब क्या होगा, धीरे धीरे चार्ज होगा। उसने क्या किया, जब ये चार्ज हो रहा था, मतलब थोड़ा चार्ज इस पे आया है, बट ये कंप्लीटली चार्ज अभी हुआ नहीं है, इट्स स्टिल चार्जिंग, ड्यूरिंग द टाइम इट इज स्टिल गेटिंग चार्ज। उसने यहाँ पे प्लेट्स के बीच में एक कंपास रख दिया, मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक नीडल। स्ट्रेंज फिनोमेना हुआ, ड्यूरिंग चार्जिंग दिस कंपास नीडल शोड डिफ्लेक्शन। फिर नॉर्मली तो क्या होता है, नॉर्थ साउथ में अलाइन रहती है। जैसे अगर आप देखोगे कंपास नीडल आप देखो रखी हुई, तो हैप्पीली रुकी हुई रहती है, स्टेबल मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ। जैसे इसको इसने यहाँ पे रखा, एकदम से डिफ्लेक्ट हुई, और ये एक्सपेरिमेंट इसने रिपीट किया।
एंड इतनी बार रिपीट किया कि ये फैक्ट स्टैब्लिश हो गया कि कुछ तो है, जितनी देर ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, इफ आई पुट अ मैग्नेटिक नीडल बिटवीन द प्लेट्स इट शोज अ डिफ्लेक्शन। एंड देन एवरीवन एग्रीड टू इट कि हाँ, बात तो बंदा सही बोल रहा है कि एकदम से कोई मैग्नेट तो पास में नहीं है, सिर्फ एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो व्हाई वुड दिस मैग्नेटिक कंपास और नीडल वुड डिफ्लेक्ट। तो उस बात पे उसने ये क्लेम किया कि मैं जो बात तुम लोगों को बोलने की कोशिश कर रहा था, अब मान लो मेरी बात यार, बहुत हो गया झगड़ा, मैं बोल रहा हूं कि ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो हो क्या रहा है कि जब आप इसको चार्ज कर रहे हो तो ये Q जो है इसका चेंज हो रहा है प्लेट्स का। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है फॉर पैरेलल प्लेट का? अगर इसको देखोगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया करना है, ठीक है? तो अभी सिग्मा क्या होता है? Q अपॉन A, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। कहाँ पे? इस रीजन में। तो आप ये बोल रहे हो कि भाई Q चेंज हो रहा है क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो Q चेंज हो रहा है। अगर Q चेंज हो रहा है तो E चेंज हो रही है, और E चेंज हो रही है उसकी वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अब बात माननी पड़ी सबको क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट को सिंपल था, और बनना कहाँ से डिफ्लेक्शन होगा। नाउ ही एक्चुअली प्रूव्ड कि नॉट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, नॉट ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज गेटिंग प्रोड्यूस, हमको दिखाई नहीं दे रही है, बट इस टाइम पे यहाँ पे करंट भी फ्लो कर रही है। क्योंकि एक फैक्ट और है जो आपको मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ाया था कि दुनिया में कहीं भी अगर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है तो कोई ना कोई चार्ज मूव कर रहा है, मतलब करंट मूव कर रही है, और कोई नेटिव सोर्स नहीं है मैग्नेटिज्म का। जैसे चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी का तो नेटिव सोर्स क्या है? चार्ज को मूव करा देते हो, करंट बन जाती है। मैग्नेट में क्या मूव करता है? मैग्नेटिज्म का सोर्स भी कहीं ना कहीं मूविंग चार्ज ही है। तो उसने ये बोला कि ये जो मैग्नेटिज्म इसके बीच में आ रही है, तो यहाँ पे इसका मतलब करंट भी है, क्योंकि मैग्नेटिज्म का अल्टीमेट सोर्स भी करंट है। इसका मतलब व्हेन वी आर चार्जिंग there is some invisible current flowing in this space, and he named this current as displacement current। क्योंकि वो जो नॉर्मल करंट हमारी होती है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं फिजिकली, तो उसको हम बोलते हैं करंट, तो इसने इसको नया नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। एंड डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब पूरा कहते हैं ना कि क्रेडिट मैक्सवेल को जाता है कि इसने बोला कि देयर इज अ करंट व्हिच वी आर नॉट एबल टू सी बट देयर इज, एंड ही प्रूव्ड मैथमेटिकली कि दिस डिस्प्लेसमेंट करंट इज एक्चुअली इक्वल टू द कंडक्शन करंट व्हिच इज फ्लोइंग व्हेन द कैपेसिटर इज गेटिंग चार्ज। सो एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो हम लोग अभी देखेंगे। क्या प्रूव करेंगे? जो मैक्सवेल ने बोला कि यहाँ पे एक करंट भी फ्लो कर रही है, जो कि यहाँ पे अगर एक करंट फ्लो कर रही है IC व्हिच इज द कंडक्शन करंट, नॉर्मल वायर वाली करंट यार, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक और करंट है भाई लोगों, वो है ID व्हिच इज डिस्प्लेसमेंट, जो आपको आज तक दिखी नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे वो करंट फ्लो कर रही है, और मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कि जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है उस टाइम पे ये कंडक्शन करंट और ये डिस्प्लेसमेंट करंट वैल्यू में भी इक्वल है। ठीक है? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे ऑफ दिस चैप्टर, मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वेशन। ठीक? So let's go to the notes and quickly see this. If I have this open then it's okay, and तो easy हो जाएगा। नहीं, I don't have this. It's pretty easy derivation और आ भी जाता है एग्जाम में कभी कभी। तो ये पार्ट हम थोड़ा बाद में करेंगे क्योंकि पहले हमको मैक्सवेल का डिस्प्लेसमेंट करंट समझना है। I slightly changed the order of the chapter. I hope it is readable at the back.
Rashi and Nishida. Maxwell gave the idea that a time varying electric field gives rise to magnetic field, जो उसका starting point, ठीक है. Just like a changing magnetic field gives rise to EMF और current, ठीक है. इसका starting statement है. This leads to a symmetrical behavior of electric field. मतलब बोला life has symmetry, तो ऐसा होना चाहिए. और उसने उसको प्रूव किया चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर. तो क्या किया इसने, एक कैपेसिटर है, ठीक है, मतलब ये पैरेलल प्लेट नहीं है, जैसे ये सर्कुलर प्लेट है, ठीक है, इस तरीके से ये कैपेसिटर इसने लिया और उसको चार्ज किया. तो उसने वही किया, यहाँ पे कंपास रखा और नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा था, उसने प्रूव किया कि ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक. उसके बाद उसने ये बोला कि यार अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, समझो बात को, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैथ की तरफ जा रहा है. ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो अगर मैं यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊं, एक कोई इमेजिनरी लूप लूं, तो इसके लिए ये होना चाहिए इस लूप के अंदर इंटीग्रल B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I. भाई एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड, मान लो यहाँ पे एक वायर है, इसके अराउंड हमने एक लूप लिया और इस लूप में हमने इंटीग्रल B डॉट DL किया, मतलब इसकी लेंथ के अलॉन्ग हम गए और B डॉट DL करते गए, उसको ऐड कर लिया, तो ये बराबर आता है म्यू नॉट टाइम्स I. याद है भाई. और ये I क्या होता है, दिस इज द करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप. जो आपने लूप बनाया है उसके अंदर से जो करंट जा रही है वो I है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का ये. तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं, अगर मैं इसके हिसाब से देखूं, ये मेरा कोई इमेजिनरी लूप है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमने सबने एग्री किया है, सबने बोला हाँ. तो अब मैं इसमें मूव करूंगा तो इंटीग्रल B डॉट DL शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I. इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि मैग्नेटिक कंपास हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है. इसका मतलब ये, अगर एम्पियर ने ये बोला था तो ये बात मैं बोल सकता हूँ. तो मैं बोला हाँ, एम्पियर ने भी बोला हाँ, ये होना चाहिए, ये तो मेरा ही लॉ है. लेकिन उसने बोला भाई B डॉट DL तो ठीक है, ये मैं निकाल लूंगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो है, लेकिन I का मैं क्या करूं. आप बताइए एम्पियर साहब, इधर I कहाँ पे है. तो एम्पियर चक्कर में पड़ गया, यार I तो सिर्फ वायर में होती है, ये बीच में स्पेस में कहाँ से I होगी. तो इस लूप के थ्रू कोई करंट है ही नहीं. इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रल B डॉट DL जीरो होना चाहिए, क्योंकि म्यू नॉट टाइम्स I, देयर इज नो I, सो जीरो. इसका मतलब इंटीग्रल B डॉट DL जीरो. अब इंटीग्रल B डॉट DL जीरो, इसका मतलब B जीरो. अगर B जीरो है यहाँ पे तो ये मैग्नेटिक कंपास को डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया. तो उसने क्या बोला, ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि एम्पियर का सर्किटल लॉ जो है वो कंप्लीट नहीं है. जो ये हम जो इक्वेशन लिख रहे हैं म्यू नॉट टाइम्स I, इसमें एम्पियर ने सिर्फ कंडक्शन करंट को कंसिडर किया है. जो मेरी डिस्प्लेसमेंट करंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो आपको दिख नहीं रही है, वो स्पेस वाली करंट, वो इसमें टेकन इनटू अकाउंट नहीं है. So we need to modify this ampere circuital law and add a new current called displacement current. तो उसने ये बोला कि मैं आपको नई इक्वेशन बता रहा हूं. गाइस ये लिखने को आती है आपको एग्जाम में, इसलिए प्लीज इम्पोर्टेंट. मैक्सवेल ने अपनी नई इक्वेशन दी, इंटीग्रल B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I फ्रॉम एम्पियर and he added plus ID which was his current which he named as displacement current. तो एम्पियर सर्किटल लॉ मॉडिफाई हो गया म्यू नॉट टाइम्स I प्लस ID. और उसने ये भी बोला कि मैं पूरा होमवर्क करके आया हूं, अब तुम लोग मुझे नेक्स्ट सवाल पूछोगे कि ID की वैल्यू बताओ. जैसे IC की वैल्यू क्या होती है, चार्ज पर यूनिट टाइम, Q dQ by dt. तो वो अपना होमवर्क करके आया था मीटिंग में. उसने बोला ID की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d phi e by dt. जैसे फैराडे ने क्या बोला था, EMF इज इक्वल टू d phi b by dt.
इसने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम्स एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उस हिसाब से अगर हम ये इक्वेशन को राइट करें, ओके, सो इस इक्वेशन को अगर हम राइट करें तो क्या बन जाएगा, देखो ये ध्यान रखना, मैं लिख रहा हूं म्यू नॉट आई प्लस आई डी, आई डी की जगह हम लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई बाई डी टी, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई प्लस आई डी, और यहाँ पे आई डी को इसने बोला कि दिस इज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई बाई डी टी। तो ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी इंटीग्रल बी डॉट डी एल, ये एग्जाम में एज इट इज लिखने को आती है एक नंबर की, राइट मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट टाइम्स आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई दिस इज termed as Ampere Maxwell equation। उसने तुरंत अपना ठप्पा लगाया उसके ऊपर, राइट। उसने बोला कि यार इस बंदे ने भी मेहनत करी है, देखो ही वॉज वेरी स्मार्ट गाय, ओके, काफी यंग साइंटिस्ट था वो, पॉलिटिकली ही वाज ऑलवेज करेक्ट। तो उसने बोला कि अगर मैं इसका नाम हटाऊंगा तो ये अभी पॉलिटिकल इशू बनाएगा लाइफ में मेरे लिए। तो ये सब साइंटिस्ट बहुत, इनको ईगो बहुत बड़ी होती है भाई, बड़े साइंटिस्ट होते हैं ये सब अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो उसने बोला इनका नाम हटाऊंगा, खाली अपना नाम डालूंगा तो ये इशू बन जाएगा। उसने बड़ी स्मार्टली पहले उसका नाम दे दिया, सर थैंक यू वेरी मच, नाउ आई एम हियर एंड दिस इज दिस इक्वेशन। So this equation is now marketed as Ampere Maxwell equation. This B dot dl is equal to B dot I times. Okay. Now the next task was to prove that this displacement current is actually equal to the conduction current while the capacitor is charging. तो डेरिवेशन देख लेते हैं। तो ये आपका टेक अवे ये है डियर कि ये आपको इक्वेशन याद रहनी चाहिए as Maxwell Ampere Maxwell equation. You can't expect too much numericals on this. I don't think it is actually in the scope also. Just the equation is enough. So क्या प्रूफ कर रहे हैं हम लोग? During charging of a parallel plate capacitor, prove displacement current is same as conduction current. This is what we are trying to prove. ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का जनरली, ठीक है। तो डियर अभी आपको मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या होती है, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा इज क्यू बाई ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट। सो ये सबको समझ में आ रहा है, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो फॉर्मूला है अपना, राइट। अच्छा, अगर इसका हम फ्लक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, थ्रू द प्लेट्स ई इंटू ए करेंगे हम, तो ये जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, दिस इज ई, एंड अगेन विल मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ द प्लेट, राइट। तो क्या आ जाएगा ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स आ गया हमारा। तो मैक्सवेल ने क्या बोला कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट की मैं वैल्यू लिख के दे रहा हूँ आपको, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, दिस वाज हिज फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब यहाँ देखो आप इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू दिस गाय, यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ क्यू, ये थोड़ा गलत हो गया डियर, ये यहाँ से कट होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट वी हैव टेकन आउट साइड, ठीक है ना। नहीं सॉरी, इट इज देयर, ये यहाँ से ये वाला एप्सिलॉन नॉट है जो उसके फॉर्मूले वाला है, सॉरी ये फॉर्मूले वाला एप्सिलॉन नॉट है, और ये नीचे, अब ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिया तो ये और ये दे विल नॉक ऑफ ईच अदर, आ रहा समझ में। तो बचेगा क्या ले देके, डी क्यू बाई डी टी, एप्सिलॉन नॉट इज गोइंग ऑफ, एंड डी क्यू बाई डी टी क्या है, कंडक्शन करंट। तो क्या प्रूफ कर दिया कि मेरी जो डिस्प्लेसमेंट करंट इसको आप ये बोल रहे हो वो एक्चुअली बराबर आ रही है
कंडक्शन करंट। आगे बात समझ में, इतना से प्रूफ करना होता है अपने को 2 मार्क्स के लिए, आता है एग्जाम में। डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट। तो नॉट ओनली ही क्लेम्ड दैट देयर इज अ करंट, he also gave a formula for this, and with the formula he proved that during charging of a capacitor this displacement current which I am talking about is same as conduction current. ठीक है, clear? So actually electromagnetic waves की जो सपोर्टिंग मटेरियल है, मतलब सबने ये एग्री किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो एनवायरनमेंट में ट्रैवल भी करते हैं, वैक्यूम में भी ट्रैवल करते हैं, बट इसके पहले, मैक्सवेल के पहले, ये कोई समझा नहीं पा रहा था कि ये एक दूसरे को साथ मिलके ऐसे आगे कैसे बढ़ते रहते हैं। अब यहाँ से आ गया, आपको मैंने बताया सिंपल शब्दों में, एक चेंज हो रहा है तो दूसरा प्रोड्यूस हो रहा है, फिर दूसरा चेंज हो रहा है तो पहला फिर से प्रोड्यूस हो रहा है, फिर पहला चेंज हो रहा है दूसरा प्रोड्यूस हो रहा है, और ये कहानी चलती जा रही है, राइट? दिस इज व्हाट इट इज। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा, ये 4 इक्वेशंस हैं डियर, जो मैक्सवेल ने बोला कि आप एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसने बोला कि मैं इन 4 इक्वेशंस में समराइज कर सकता हूं। ठीक है, पहला गॉस लॉ, पुराना वाला, E डॉट डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो गॉस लॉ होता है नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब उसने कहा वो तो वैसे का वैसा ही है। फिर उसने बोला गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, बी डॉट डी इज ऑलवेज जीरो, मतलब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को एरिया पे डॉट लेके इंटीग्रेट करोगे क्लोज तो जीरो आएगा। ये उसने अपना फ्लेवर ऐड किया। फिर उसने बोला तीसरा, फैराडे के लॉ को मॉडिफाई किया, ई डॉट डी एल, इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज डी फाई बाई डी टी, भाई ई इंटू डी बेसिकली क्या होता है, वी हो जाता है, ई एम एफ डी फाई बाई डी टी। और फाइनली अपना लास्ट में डाला। आई सेड ना, ही वॉज वेरी वेरी स्मार्ट, पॉलिटिकली करेक्ट रखना था उसने को, पहले उसने सारी इक्वेशन लिख दी, लास्ट में अपनी ऐड कर दी। इसको बोल दिया एम्पियर मैक्सवेल लॉ और एम्पियर मैक्सवेल मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। बी डॉट डी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई सी, मतलब म्यू नॉट टाइम्स कंडक्शन करंट प्लस, सो दिस पार्ट वाज फ्रॉम एम्पियर एंड दिस पार्ट बिलोंग्स टू मैक्सवेल। ठीक, तो ये इसने 4 नई इक्वेशन दी। ये आपको एक बार दिमाग में रहनी चाहिए, कभी कभी वैसे आए तो नहीं लिखने के लिए, बट सिंस एनसीईआरटी में लिखी हुई है एंड you never know, they might ask, give you one marker or 2 marker to write all this. ठीक है, ये तो कई बार लिखने को आता है, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। अब हम थोड़ा बेसिक थ्योरी कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज एंड सम वेव इक्वेशंस एंड ऑल दैट, द मैथ्स बिहाइंड। ये प्रॉपर्टीज दियर आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आती है कभी कभी, इनसे क्वेश्चन आता है ड्रिवन। ठीक है, तो डेफिनेशन वाइज ईएम वेव्स आर सेल्फ सस्टेनिंग पीरियोडिक ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम एंड स्पेस, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स क्विकली एक बार रोशनी कर लेते हैं समझने के लिए। नो मटेरियल मीडियम इज नीडेड फॉर द प्रोपगेशन, दे कैन ट्रैवल इन vacuum as well, the most basic property. Second, any electromagnetic wave, any means any, कहीं से भी जनरेट हुई हो, वो सन से आ रही हो या लैब में आपने एक्सरे मशीन से निकाली हो, इजेक्ट करी हो, आपने किसी भी मैकेनिज्म से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर जनरेट करी है, so in vacuum that wave will travel with this speed 3, it is 2.99 to be precise, but we can take it for all practical purposes, we can take it 3 into 10 to the power 8 meter per second. Any electromagnetic wave, अगर कोई बोले कि गामा रेज की स्पीड क्या है इन वैक्यूम, 3 into 10 8, विजिबल लाइट सेम स्पीड, एक्स रे सेम स्पीड, रेडियो वेव सेम स्पीड, बिकॉज ऑल दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट? तो कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, कभी कभी हमें इसकी न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ती है। गामा रे दिया हुआ है, गामा रे की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, अब न्यूमेरिकल करते बैठे समझ में नहीं आ रहा आगे कैसे पढ़ें, क्योंकि खाली फ्रीक्वेंसी दी है, कुछ दिया नहीं, वेवलेंथ पूछ ली, अरे यार तुम्हारे पास स्पीड तो है ही ना, गामा रे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये इन्फॉर्मेशन
हमेशा आपके पास है, द स्पीड ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. EM waves are transverse in nature, means the direction of propagation of a wave is perpendicular to the direction of oscillations of electric field and magnetic field both. मतलब क्या? थोड़ा एक डायग्राम देखते हैं हम, उसे समझ में आएगा आपको. गाइज, ये एक टिपिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का. ऐसा नहीं कि वेव ऐसे ही हो सकती है, बट एक टिपिकल, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है. दिस इज वेरी कंसेप्चुअल एंड इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, इवन जेई मेंस एंड कभी कभी जेई एडवांस लेवल तक भी. ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझो. हमारे पास स्पेस में 3 डायरेक्शंस होती हैं, एक्स, वाई और जेड. एक्स, वाई और जेड. इन तीनों मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड को एक चाहिए डायरेक्शन ऑसिलेट करने के लिए, एक डायरेक्शन चाहिए मैग्नेटिक फील्ड को ऑसिलेट करने के लिए. अगर किसी पार्टिकल को ऑसिलेट करना है तो कोई डायरेक्शन चाहिए ना, या तो ऐसे ऐसे करेगा, या ऐसे ऐसे करेगा, या फिर ऐसे ऐसे करेगा, कोई तो डायरेक्शन चाहिए. तो एक डायरेक्शन ले ली किसने? इलेक्ट्रिक फील्ड ने. दूसरी डायरेक्शन ले लेगा मैग्नेटिक फील्ड, और इन दोनों के परपेंडिकुलर जो तीसरी डायरेक्शन बचेगी उसमें वेव चलेगी. समझो कैसे. जैसे मान लो ये मेरा एक्स है, ये वाई और ये जेड. मतलब कैसा हो रहा है, ये वाली लाइन जो है स्मार्ट बोर्ड की, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जेड एक्सिस है. जो ये वाली लाइन है वो एक्स एक्सिस है, और जो आप लोग की साइड आ रही लाइन वो वाई एक्सिस है. ठीक है, तो एक्स वाई जेड, तो एक्स क्रॉस वाई करेंगे तो जेड आएगा, एक्स क्रॉस वाई जेड, इस तरह से. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऑसिलेट कर रही है एक्स में, देख रहे हो ना, एक्स में ऑसिलेट कर रही है, आ रहा समझ में? दिस वॉज माई एक्स डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड फिर एक्स में ऑसिलेट नहीं कर सकती क्योंकि एक्स वाला ले लिया है ई ने. मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है आप लोग के डायरेक्शन, मतलब ऐसे ऐसे इस वाले प्लेन में, जेड डायरेक्शन, प्लस जेड माइनस जेड, प्लस जेड माइनस, इस तरीके से. आई बात समझ में? और वेव कैसे आगे बढ़ रही है? ओवरऑल जेड डायरेक्शन में. भाई समझो बात को. वन डायरेक्शन इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, वन डायरेक्शन इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और हमें थर्ड डायरेक्शन जज करनी है वेव प्रोपोगेशन की. तो वेव कैसे आगे बढ़ रही है? वेव जेड डायरेक्शन में. इसका रूल क्या है? इसका एक सिंपल रूल आपको बता रहा हूं, नोट्स में शायद नहीं है वो. देखो, अगर आपको ई की डायरेक्शन पता है और आपको बी की डायरेक्शन पता है, ये आपको पता है, और किसी ने पूछा कि इन विच डायरेक्शन द वेव इज प्रोपोगेटिंग, तो आपको करना है ई क्रॉस बी. वेक्टर ई क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. प्रोपोगेशन ऑफ वेव मतलब कैसा? अभी जैसे इस वाले केस में देखो, जो हमने अभी एग्जांपल देखा, उसमें इसको अप्लाई करते हैं. ई किसके अलोंग था? एक्स के अलोंग, मतलब आई कैप. ई किसके अलोंग है? एक्स के, मतलब आई कैप. बी ऑसिलेट कर रहा है वाई के अलोंग, मतलब जे कैप. तो ई क्रॉस बी, तो ई है आई, बी है जे, तो आई क्रॉस जे, दिस विल बी के. आई होप यू रिमेंबर दिस फ्रॉम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट अगर आई लिखा है ऐसे, यहाँ पे जे लिखा है ऐसे, और यहाँ पे के लिखा है ऐसे, एंड वी मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. वी ऑलवेज मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इफ वी फाइंड आई क्रॉस जे, मतलब वी आर कमिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, so it will be, the answer would be K. If we go K cross I, answer would be J. K cross I, answer would be J. J cross K, answer would be I. और इसके अलावा अगर मैं आपको फ्लिप किया, अगर आपने अगर I क्रॉस J की जगह आपने J क्रॉस I किया, so going reverse, so it will be minus K. J cross I would be minus K, or something similar will happen here.
If you do I cross k, it will be minus j. If you do k cross j, it will be minus I. Okay? Why I'm telling you this? Because not many questions in EM wave would be based on this. They will give you direction of E in I cap, B in some j or k cap, and they'll ask you which direction wave is propagating. So if you do not know this, you'll keep guessing forever, and answer आ जाएगा गलत, क्योंकि किसी बुक में आपको मिलेगा नहीं. बहुत कम बुक्स में इसको स्पेसिफाई किया गया है. याद रखना, E क्रॉस B का जो डायरेक्शन होता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. जैसे कि मान लो किसी ने दिया E इज ऑसिलेटिंग इन, लेट्स से E की वैल्यू कुछ इस तरीके से दी हुई है, माइनस या से बोल लो 5j कैप, और B की वैल्यू दी हुई है 6k कैप, और पूछा गया अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से ऑसिलेट कर रही है, तो वेव किधर जा रही है, किस डायरेक्शन में, E क्रॉस B, J क्रॉस K. J क्रॉस K मतलब I, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ जा रही है. अगर आंसर आता माइनस, तो मतलब वो इलेक्ट्रिक वेव जो है वो नेगेटिव x डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है. तो विल यू रिमेंबर दिस रूल, राइट? सो दिस इज नाउ एडेड टू योर किटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स. ये आपको याद रखना है, क्योंकि बाकी सब तो थ्योरी पढ़ के निकल जाएगा, लेकिन ये जो मेन मसाला है ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहना चाहिए. So let's come back to the properties. थर्ड हमने किया अभी पूरा डिटेल में. EM waves do not carry any charge. Very very important properties. EM waves do not carry any charge. इनके पास कोई चार्ज नहीं होता, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी है डियर. अगर आप ये सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये चार्ज लेके चल रही है अपने साथ, या मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेट लेके चल रही है अपने साथ, तो आप क्या किया गया है, किसी ने तो बैठ के कुछ खुराफात कर दी है, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर दिया है, और बस उसके बाद वो मजे ले रहा है. क्यों? उसको मालूम है एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती रहेगी, और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये आगे बढ़ता रहेगा. चार्ज नहीं दिया उसने, ना मैग्नेट दिया, सिर्फ एक डिस्टर्बेंस दिया, इसलिए ये वेव है, डिस्टर्बेंस. इट इज ओनली कैरिंग द एनर्जी. ठीक है? सो इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हाउ विल दे डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड? दे विल नॉट डिफ्लेक्ट, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी चार्ज, so why would they deflect? ठीक है? All EM wave, हाँ ये भी important property है, all electromagnetic waves have the fundamental wave properties. जो वेव की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है, तीन प्रॉपर्टी होती है वेव की फंडामेंटल. पहली फ्रीक्वेंसी, एवरी वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी, एवरी वेव हैज अ वेवलेंथ, एंड एवरी वेव हैज अ स्पीड. राइट? तो भाई ये भी अगर वेव है तो इसके पास भी फ्रीक्वेंसी भी होगी, वेवलेंथ भी होगा, एम्पलीट्यूड भी होगा, और स्पीड भी होगी. ठीक है? ये सारी चीजें. और एक चीज और याद रखना, हमको मालूम है किसी भी वेव के लिए ये इक्वेशन हमेशा ट्रू होती है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, speed is equal to, please note this if you don't know this from last year, this is true for any wave, speed is equal to frequency times wavelength. इस बेसिक फॉर्मूला पे भी काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं. वैसे आपको पता होगा ये v is equal to f lambda, I know, बट अगर नहीं पता है तो प्लीज नोट दिस. दिस कैन बी अप्लाइड फॉर EM वेव एज वेल. जैसे मान लो मुझे दे दिया कि एक EM वेव है ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻⁶ हर्ट्ज. ठीक है? ये बोल दिया, और बोला इसका वेवलेंथ बताओ. तो कंफ्यूज नहीं होना है, EM वेव है तो v की वैल्यू तो फिक्स हो गई, 3 × 10⁸. भाई EM वेव बोल दिया, इसका मतलब स्पीड बता दी. राइट? v पता है, f पता है, दिस इज f. क्या करना है? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू v बाय एफ. v इज दिस, f इज दिस. सो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 10⁻⁷
6. This will be 3 into 10 to the power 2. It is 300 meters. Is the ठीक है? This is how we can. So EM wave also has all these things. And speed हमेशा fix है. अगर vacuum है तो speed is this. Okay. अच्छा, आप लोगों को 10th में एक चैप्टर पढ़ाया गया होगा रिफ्रैक्शन। तो उसमें पढ़ाया गया होगा आपको कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इट बेंड्स एंड इट्स स्पीड चेंजेस। लाइट भी क्या है? एक ईएम वेव है। तो भाई जब मीडियम चेंज होगा तो ईएम वेव की स्पीड भी चेंज होगी। सो वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव डिपेंड्स ऑन द मीडियम। This velocity is maximum in vacuum or air. In all other medium, it will be slightly less, but it will be changing medium to medium. मतलब ग्लास में अलग स्पीड होगी, राइट? सैंड में अलग स्पीड होगी और ट्रैवल कर रही है। प्लास्टिक में अलग स्पीड होगी, ऑयल में अलग स्पीड होगी। हर मीडियम में अलग स्पीड होती है ईएम वेव की। जो 3 × 10⁸ हमने लिया है वो वैक्यूम या फिर एयर के लिए, ठीक है? सोर्स ऑफ ईएम वेव्स मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, एक्सेलरेटेड चार्जेस रेडिएट ईएम वेव्स, ठीक है? इसको आप पढ़ लेना फिर से। अब हम पढ़ते हैं वेव इक्वेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? आप याद करो, आपने जब वेव चैप्टर पढ़ा लास्ट ईयर 11th में, जस्ट रिकॉल, आपने इक्वेशन पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या फिर y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, राइट? याद आया? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल विच इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड, गेटिंग डिस्प्लेस्ड, इज अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स. इट चेंजेस विद टाइम एंड इट चेंजेस विद स्पेस एज वेल. मतलब अगर वेव कोई, इफ एनी वेव इज ट्रैवलिंग माय डियर फ्रेंड्स, और मैं यहाँ पे एक पार्टिकल है जो कि इस समय अपने मीन पोजीशन से इतना दूर है, लेकिन क्या ये हमेशा यही रहेगा? तो टाइम के साथ चेंज होगा, ऊपर नीचे आएगा। इसी टाइम पे अगर मैं देखूं कोई और पार्टिकल, वो तो यहाँ पे है, कोई और पार्टिकल वो यहाँ पे है। इसका मतलब एक वेव की इक्वेशन में अगर हमको डिस्प्लेसमेंट जानना है तो उस बंदे को हमें दो चीजें बतानी पड़ेंगी कि आप कहाँ की बात कर रहे हो और किस समय की बात कर रहे हो, विच पार्टिकल एंड व्हेन. दैट मीन्स यू हैव टू टेल मी द प्लेस वेयर योर, विच इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड द टाइम व्हेन. तो जब ये वेव इक्वेशन है, ईएम वेव भी क्या है? एक वेव है, तो उसकी इक्वेशन भी कुछ ऐसी लिखनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ये वेव की इक्वेशन है, ईएम भी एक वेव है, तो उसकी इक्वेशन कैसी दिखेगी ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगेन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यहां पे जो हमने एग्जांपल भी देखा था, इसमें ई चल रही थी एक्स में, बी चल रही थी वाई में, और वेव चल रही थी जेड में। तो इसकी इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखेंगे, ई को लिखेंगे ई एक्स। गाइस प्लीज पे अटेंशन, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ई को हम लिख रहे हैं यहाँ पे ई एक्स, क्यों? क्योंकि इस एग्जाम्पल में E is oscillating like this, ठीक है? E x is equal to E naught, मतलब some amplitude. This is called the maximum electric field. See, electric field is changing with time. It's a changing electric field. It is changing with time, but it will have some maximum value, na? Amplitude. So that is the maximum value, E naught. Sin k x. अब वहां पे हमने वो x क्यों डाला था कि wave was propagating in x direction, और यहाँ पे हमारी wave कहाँ propagate कर रही है? Z में। तो डियर यहाँ पे तो Z आएगा। तो ये जो प्लेस है, ये रिजर्व है फॉर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। तो हो गया kz माइनस ओमेगा टी। इसी तरीके से बी में लिखेंगे बी वाई, क्यों? क्योंकि ये वाई में ऑसिलेट कर रहा है। बी नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड साइन kz माइनस ओमेगा टी। रिमेंबर दिस पार्ट is exactly same. That means
Electric field and magnetic field are in same phase. There is no phase difference between electric field and magnetic field in a electromagnetic wave which is in your syllabus. ठीक है, तो ये याद रखना, कोई बताएगा नहीं आपको अलग से। ये पार्ट अगर एक का kz माइनस ओमेगा टी है तो दूसरे का भी kz माइनस ओमेगा टी ही होगा, ओमेगा टी माइनस kz भी नहीं हो सकता जो वेव आपके सिलेबस में है। रिमेंबर दिस। इसको रीड कैसे करना है, अगर ये kz माइनस ओमेगा टी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये जो वेव है जिसकी इक्वेशन ये लिखी हुई है ये चल रही है पॉजिटिव z डायरेक्शन में। आई बात समझ में? अगर यहां लिखा होता kz प्लस ओमेगा टी तो ये वेव चल रही है नेगेटिव z डायरेक्शन में। अगर यहां लिखा होता साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, अगर यहां z की जगह x लिखा होता तो ये वेव चल रही है पॉजिटिव x डायरेक्शन में। अगर यहां लिखा है के एक्स प्लस ओमेगा टी तो ये वेव चल रही है नेगेटिव x डायरेक्शन में। स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं एकदम, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, 1 मार्कर। दे विल गिव यू इक्वेशन एंड सिंपली आस्क इन विच डायरेक्शन दिस वेव इज प्रोपोगेटिंग। याद रखना कि kz माइनस ओमेगा टी हो या फिर ओमेगा टी माइनस kz हो, दोनों ही पॉजिटिव z डायरेक्शन है। आई बात समझ में? चाहे kz माइनस ओमेगा टी हो या ओमेगा टी, अगर प्लस हो गया बीच में तो ये नेगेटिव डायरेक्शन हो। ठीक, तो ये है कहानी। अब इसमें कुछ रिलेशन भी होता है आपस में। ई नॉट और बी नॉट में एक रिलेशन है, पहले वो भी देख लें एक बार, आपको आगे में लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इसका डेरिवेशन आपके स्कोप से वे बियॉन्ड है। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय सी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो मेनी a times they will give you one of this, E naught or B naught, and they'll ask what is the other one. So remember this formula. While this is written for only amplitude, ये B naught क्या है? Amplitude, but this is also true for RMS values as well. अगर यहाँ पे लिख दूँ मैं B RMS, that will be equal to E RMS upon C. Changing है ना, तो RMS भी ले सकते हैं। हाँ, yes. C is speed of electromagnetic wave. C is speed of, आप लोग लिख सकते हो नोट्स में। ऐसे C मैंने यहाँ पे लिखा है इसलिए नहीं क्योंकि इट इज वेरी वेरी कॉमन अल्फाबेट, हो सकता है ऊपर लिखा हुआ, मैंने जंप किया है यहाँ से टॉपिक, ठीक है। बट दिस इज स्पीड ऑफ द वेव। इसकी वैल्यू अगर वैक्यूम में रहेंगे तो 3 × 10⁸ अगेन, ठीक है। अब कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं जो आपने लास्ट ईयर पढ़ी थी, थोड़ा सा बता देता हूँ फिर से। जो ये K नंबर लिखा होता है इसको हम बोलते हैं वेव नंबर या वेव वेक्टर, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ। मतलब अगर ये इक्वेशन हमको दी हुई है और ये नंबर हमको दिया हुआ है तो इन अ वे दे हैव गिवन अस द वेवलेंथ, बिकॉज 2 पाई बाई लैम्डा करके हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ये जो आगे नंबर लिखा है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, ठीक है। और ये ओमेगा इज 2 पाई एफ, ये मालूम है हमको, यहाँ पे शायद लिखा नहीं है मैंने, आप लोग अपने नोट्स में वो चीज़ ऐड कर लेना। ओमेगा इज 2 पाई एफ या फिर 2 पाई बाई टी। एक और फॉर्मूला याद रखना, कभी कभी हमको इक्वेशन ऐसे दे देते हैं, कुछ भी अपने मन से बना देंगे, ऐसी इक्वेशन दे देंगे, पूछेंगे व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। अब देखो, अब आप स्पीड ऑफ द वेव ये दिमाग पे रख के गए हो कि निकालने की जरूरत क्या है, वो तो 3 × 10⁸ है डियर, वो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है, हमको मालूम है। When they make a question and they are giving you equation, that guy is expecting you to calculate the speed, तो उस केस में आपको ये इक्वेशन को देखना है, एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन ओमेगा टी के आगे जो लिखा है नंबर वो ओमेगा है, इसके आगे जो लिखा है वो के है। ओमेगा और के निकलने के बाद स्पीड का फॉर्मूला बनता है ओमेगा बाई के। दीज आर द फॉर्मूलाज दैट यू शुड रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। बहुत सिंपल चैप्टर है, सिर्फ देखना होगा और वैल्यू प्लग इन करना होगा, भी निकल आएगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू सी के भी हो जाएगा,
ठीक है, वी को अगर हम सी लिखे तो ओमेगा इज इक्वल टू सी के। अच्छा, एक चीज आप लोग और याद रखिए इसमें, आपने दो कांस्टेंट पढ़े इलेक्ट्रोस्टैट में, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या था? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इनका जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, उसका रेसिप्रोकल निकालोगे, एग्जैक्टली सी के बराबर आता है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे, भाई म्यू नॉट की वैल्यू हमको पता थी, म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कुछ 8.85 10 टू द पावर माइनस 12, राइट। तो ये आप जब नंबर निकालोगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसकी कैलकुलेशन आप करके देखना, आपको नियर अबाउट ये वैल्यू मिलेगी, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। इसका मतलब सॉरी स्क्वायर रूट, इसका जब ये निकालोगे तो आपको ये, तो वही चीज़ मैंने वहाँ पे लिखी हुई है फॉर्मूले की तरीके से। ये स्क्वायर रूट शायद यहाँ पे मिस हो गया डियर, आई विल करेक्ट दिस। और अब आ जाते हैं हम सिंपली अपने न्यूमेरिकल्स पे। ये हमने कर लिया, ये कर लिया, ये पार्ट थोड़ा सा अभी मैं पार्क कर रहा हूँ, मतलब माई इंटेंशन इज टू डू एटलीस्ट फ्यू न्यूमेरिकल्स टुडे। क्या बोल रहा है? इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स साइनोसॉइडली विद फ्रीक्वेंसी दिस। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी दे दी है। अब याद रखो फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी ये दी है तो मैग्नेटिक फील्ड की भी यही होगी, मतलब ओमेगा इज सेम, ओमेगा इज नॉट डिफरेंट। एंड एम्पलीट्यूड इज दिस, ये ई नॉट की वैल्यू है, ई नॉट। आ रही समझ बात? फाइंड वेवलेंथ, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई एफ, सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू सी बाई एफ, सी इज दिस। अच्छा, if that guy doesn't talk about any specific medium, so it is assumed that this guy is talking about speed in vacuum. Take the value as this, f is given as this, so आपका ये आ गया lambda, simple। पूछा b नॉट, अभी फॉर्मूला बताया, b नॉट इज e नॉट बाई c, e नॉट दिया हुआ है 48, तो 48 बाई c, तो ये आ गया yes, b नॉट का स्ट्रेट फॉर्मूला है, कुछ भी इसमें स्मार्टनेस नहीं है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन, इसको नेक्स्ट करेंगे, पहले ये वाला क्वेश्चन सिंपल कर लो आप। यहाँ पे क्या दिया हुआ, ज़्यादा वैरायटी नहीं क्वेश्चंस की, इसमें बहुत सिंपल चैप्टर है, ज़्यादा इसमें स्कोप ही नहीं है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन ईएम वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ठीक है, ये अपने को दे दिया है कि ईएम वेव है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रही है, उसकी इक्वेशन ये। ठीक, पहला क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन वेव इज प्रोपोगेटिंग? नेगेटिव जेड डायरेक्शन। सबको समझ में आ रहा है ये बात? हो गया खत्म। इन विच डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट। अब देखो ये कैसे निकालोगे, हमको ये मालूम है E क्रॉस B करेंगे तो पॉजिटिव जेड आना, नेगेटिव जेड आना चाहिए। जब हम E क्रॉस B करेंगे तो आंसर आना चाहिए नेगेटिव का जेड, मतलब माइनस के कैप। अच्छा, ये भाई साहब है प्लस एक्स में, प्लस आई कैप, तो आप खुद सोचो बी के लिए ऑप्शन क्या बचता है? सिर्फ नेगेटिव जे, अदरवाइज ये आएगा नहीं, तो इसलिए माइनस वाई डायरेक्शन, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव जे ले लोगे तो ये नेगेटिव जेड ना आके पॉजिटिव जेड आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये जज करना आपको आना चाहिए। ओके, राइट टू, ठीक है, दो चार प्रॉपर्टी बताइए आपको, उसमें से कोई दो प्रॉपर्टी लिख सकता है उठा के। अब ये देखो, इन ईएम वेव फ्री स्पेस रूट मीन स्क्वायर इज वैल्यू ऑफ ई इज दिस। अब इन्होंने एम्पलीट्यूड नहीं दिया आपको, आरएमएस वैल्यू दे दी है। फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ बी, इसकी आरएमएस वैल्यू दी है
और मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू पूछ ली है। ओके कोई बात नहीं, हमको मालूम है कि बी की वैल्यू होती है यहाँ पे ई बाई सी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बी आर एम एस इक्वल टू ई आर एम एस बाई सी। समझो यहाँ पे अगर आप एम्पलीट्यूड लोगे मैक्सिमम लोगे तो यहाँ पे भी मैक्सिमम, यहाँ पे सी रहेगा। अगर यहाँ पे आर एम एस तो वहाँ पे आर एम एस, तो यहाँ से आर एम एस निकल गई और आर एम एस इज को रूट टाइम 2 टाइम्स कर दिया तो क्या आ गया, पीक आ गया। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन अच्छा है, कर सकते हो। अ प्लेन ईएम वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज, ये अपने को एफ दे दिया उन्होंने, ट्रैवल्स इन फ्री स्पेस अलोंग एक्स डायरेक्शन, मतलब ये वेव जो है एक्स पे जा रही है, मतलब आई कैप पे जा रही है। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम ई हैपेंस टू बी दिस वैल्यू, मतलब एक ई की वैल्यू दे दी अपने को, ठीक है भाई। एट दिस पॉइंट फाइंड बी, वो तो आप फटाक से निकाल दोगे, जो भी होगी तो ये रिलेशन तो ट्रू होगा, बी इज इक्वल टू ई बाई सी, निकाल दिया आपने, आ गया। लेकिन अब हमको जज करनी है डायरेक्शन, कैसे जज करेंगे? ई है जे कैप में और वेव जा रही है अपनी एक्स में, तो अब आप जो रूल मैंने बताया ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी, तो ये अल्टीमेटली हमको जे क्रॉस के करते हैं तो आई आता है, तो प्लस आई, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में चाहिए, तो जे क्रॉस के, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होनी चाहिए, राइट। तो ये आ जाएगा, वैल्यू वुड बी दिस एंड डायरेक्शन वाइज इट विल बी के, क्या वैल्यू तो हम पहले निकाल ली यहाँ पर, डायरेक्शन वाइज दिस। बस इतना ही एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, इस पूरे चैप्टर में, बाकी थ्योरी है। अभी थ्योरी इसमें और भी है, वो मैंने भी छुई नहीं है, वो तो मैं आपको भी असाइनमेंट की तरह दूंगा, लेकिन बाकी कॉन्सेप्ट समझने वाला इसमें यही है डियर, और कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट टू जज एंड अंडरस्टैंड दीज इक्वेशंस और उससे इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है, ठीक है। ये भी कुछ आई थिंक ये PYQ फ्रॉम बोर्ड एग्जाम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड associated with the EM wave in vacuum is given like this, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें अगर मुझे जज करना हो तो विच डायरेक्शन इट इज गोइंग, पॉजिटिव साइड, ठीक है। ई इज ऑसिलेटिंग इन आई कैप, ओके। तो अगर बी पूछा तो निकाल लेते हैं अपन, पूछा नहीं, पूछा क्या, वेव वेक्टर। वेव वेक्टर डियर होता है बेसिकली ये जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये इन्होंने छुपा लिया, ये अगर ये यहाँ पे लिख देते तो हम आंसर वही लिख देते ना, वैसे आपको उन्होंने नहीं दिया, आपको पूछ लिया। लेकिन देखो ईएम वेव है तो सी कितना हो जाएगा, ये अपने को ओमेगा दे दिया इन्होंने, बस काम बन गया। तो इस वो फॉर्मूला लगाना है और निकाल लेना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उस पेज पे जो लिखे थे आपको दिखाए थे मैंने, ओमेगा और के और लैम्डा के। अब एक लास्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दे आर ट्रैवलिंग इन अ मीडियम। अब नाउ दे आर क्लियरली सेइंग दे आर नॉट इन वैक्यूम, दे आर इन सम अदर मीडियम एंड इन दैट मीडियम द स्पीड इज दिस, ओके। स्पीड हैज चेंज्ड, दैट मीन्स इट इज नॉट एयर वैक्यूम, इट इज समथिंग एल्स, ओके। उससे हमें मतलब नहीं है कोई भी मीडियम। द रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर ऑफ द मीडियम इज 1.0, ये अपने को दिया हुआ है कि जो भी मीडियम है उसका जो म्यू आर है वो ये है, ठीक है। फाइंड इट्स रिलेटिव परमिटिविटी। पहले तो गाइज ये समझो, रिकॉल करो ये कॉन्सेप्ट, ये चीजें थी क्या, आप लोग पक्के से भूल गए होगे। सो लेट मी रिफ्लेक्ट बैक ऑन दैट। म्यू अपॉन म्यू नॉट, इसको हम बोलते हैं म्यू आर, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। इसी तरीके से एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट्स ठीक है। तो यहां से ये आ जाता है म्यू विल बी इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एंड दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक। मतलब ये रेशियो है, ये रिलेटिव नंबर है, एक्चुअल नंबर चाहिए तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज द एक्चुअल परमिटिविटी, रिलेटिव ये है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो तो एक्चुअल, ये कहानी। और हमको मालूम है किसी भी मीडियम में
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड जो होती है वो इस रिलेशन से जुड़ी होती है। मतलब अगर हम बात करें एयर और वैक्यूम की तो ये जाएगा v की जगह हो जाएगा c और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं वैक्यूम की, तो म्यू विल बी म्यू नॉट, दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट। बट इफ इट इज एनी अदर मीडियम दिस विल बी दिस एंड these two things can be also written as, please see carefully, instead of mu I can write mu naught mu r, and instead of epsilon naught I can write epsilon naught epsilon r। अब इसमें अगर आप देखो इस पूरी चीज को मैं इस तरीके से रीअरेंज कर सकता हूं, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को साथ में ले लूं और रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिबिलिटी को एक साथ कर दूं, इसमें तो कोई गलती नहीं है। आई कैन रीअरेंज लाइक दिस। भाई ये चीज क्या हो जाएगी, c, इसका मतलब दिस इज c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। अगर आप याद कर लो ये फॉर्मूला तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये बेसिक फॉर्मूला भी याद है तो इससे ये निकल आता है। स्पीड इन एनी अदर मीडियम इज इक्वल टू स्पीड इन एयर वैक्यूम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी या परमिएबिलिटी। ओके, तो इसका एप्लीकेशन है उस क्वेश्चन में डियर, बस ये पूरी कहानी वही करी हमने। तो फाइनली स्पीड इन दैट मीडियम इट वाज गिवन एज 2 into this is equal to c upon, c is this upon mu और epsilon naught। ये दिया हुआ है, ये हमको पता है, ये प्लग दिस वैल्यूज। mu r was given as 1, relative permeability mu r was 1, so this guy becomes 1, तो इसको 1 कर दिया, तो यहां से एप्सिलॉन आर बस ओनली विच इज थिंग विच इज अननोन इज एप्सिलॉन और आर, वो निकल के आ जाएगा 2.25। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कभी, ये लास्ट वेरिएशन है टफेस्ट जो इसमें आ सकता है। बाकी इसमें वही सब क्वेश्चन ज्यादा कि दे विल गिव यू अ वेव इक्वेशन एंड आस्क कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, इसका वेव नंबर निकालो, इसका ओमेगा निकालो, और मे बी बी इज इक्वल टू ई बाई सी, एक वो फॉर्मूला है, उस पर क्वेश्चन। एंड दिस चैप्टर का कंसेप्चुअल पार्ट हमने पूरा कर लिया। अभी इस चैप्टर का एक नॉट सो कंसेप्चुअल पार्ट है दैट वी हैव टू स्टडी, दैट इज अ मस्ट, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन आना बिल्कुल 100% तय बात है एक नंबर का, लेकिन उससे फ्री मार्क द ओनली थिंग इज यू आर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड रीड सम टेक्स्ट। ओके, सो वो टेक्स्ट क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ और आप लोग नोट कर लीजिए इस चीज को कहीं पे, कि आपको एग्जाम के एक दिन रात में पहले उसको फिर से रट्टा मारना है। मैं तो उसको याद नहीं रखता क्योंकि आई हैव टू रिमेंबर सो मेनी थिंग्स, इट्स जस्ट लाइक मेरे लिए इनएफिशिएंसी, बट आप लोग को एग्जाम के पहले वो चीज याद होनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम जो हमारे पास पूरा अवेलेबल है सन से, उसके क्वेश्चंस है वो। Okay, so this is 108. प्लीज नोट इट समवेयर, अपने नोट्स में कहीं लिख लेना कि ये मुझे एग्जाम के पहले पढ़ना है, rather रटना है। Yes, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो 8.4 सेक्शन है डियर, ये आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है एकदम एट द टाइम। ठीक है, यहां से आपको स्टार्ट करते हुए आना है, और ये स्पेक्ट्रम जो बना हुआ है यहाँ पे, ये आपके दिमाग में बैठना चाहिए।
सो सबसे ये वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो यहाँ से ऐसे जाओगे तो वेवलेंथ शॉर्ट 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 शॉर्ट, यहाँ से फ्रीक्वेंसी कम 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 कम, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी सबसे लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है, तो सब अगर हम फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में करें तो सबसे ऊपर गामा रेज रहती है, उस गामा रेज की फ्रीक्वेंसी इस ऑर्डर में रहेंगी, मतलब सॉरी वेवलेंथ इस ऑर्डर में रहेंगी। ठीक है, 400 नैनोमीटर से, सॉरी ये वाला पार्ट आप अलग करो। अभी आप ये वेवलेंथ देखो किस ऑर्डर में, 10 की पावर -14, -13, -12, -11, ये गया है रीजन गामा रेज को, बहुत शॉर्ट वेवलेंथ किया। यू कैन सी द वेवलेंथ इज इन द ऑर्डर ऑफ -14, -13, -12, ये वाला। फिर यहाँ से थोड़ा सा करना क्रॉस इंटरफेरेंस है, बट आपको ऑर्डर इंपॉर्टेंट याद रहना चाहिए। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज गामा, उससे कम फ्रीक्वेंसी इज एक्स रेज, उससे कम फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, और उसके बाद ये पूरा विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम रहता है जो कि ये लिखा हुआ है। अल्ट्रा वायलेट की जस्ट बाद वायलेट होता है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट के जस्ट बाद वायलेट है, ये बीच में इन्होंने जूम करके यहाँ लिख दिया है। ठीक है, फिर ब्लू ग्रीन येलो अपना पूरा विब्ग्योर। फिर उसके रेड के नीचे क्या होगा, इंफ्रारेड। जैसे वायलेट के ऊपर अल्ट्रा वायलेट, रेड के नीचे इंफ्रारेड, दिस इज इंफ्रारेड। फिर माइक्रोवेव, शॉर्ट रेडियो वेव्स, टेलीविजन रेडियो, बिग रेडियो वेव्स, राइट, और लास्ट में लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम आपके दिमाग में ऐसा रटना नहीं है, बट एक पिक्चर होनी चाहिए कौन किस वेवलेंथ बैंड में है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और ये वेवलेंथ आपको दिमाग में आपको पूरे अच्छे से रटी होनी चाहिए। मतलब 400 से नैनोमीटर से यहाँ 450 कौन सा होता है, 500 कौन सा होता है, 550 क्या है, 600 क्या है, 650 क्या है, 700 क्या है, तो रेड की क्या है, ऑरेंज की क्या है, येलो की क्या है, ये सब आपको रेंज पता होना चाहिए। इफ यू फाइंड ए बेटर वर्जन इन इंटरनेट, यू कैन फाइंड दैट इन योर बुक, मे बी इट इज अ बेटर वर्जन, राइट, यू कैन रेफर दैट। अब इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी कमेंट्री लिखी हुई है हर एक वेव के बारे में। ये कमेंट्री में बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसका एप्लीकेशन इस वेव का कहाँ होता है। जैसे रेडियो वेव्स है, तो रेडियो वेव्स आपको ये हाईलाइट करना पड़ेगा टेक्स्ट, दे आर यूज्ड इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो ये क्वेश्चन आते हैं कि विच वेव इज यूज्ड इन रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, तो आपको याद रखना रेडियो वेव्स। ठीक है, एग्जाम के पहले आपको इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा। माइक्रोवेव्स, ठीक है, इनका यूसेज कुकिंग के लिए, इन चीज़ों के लिए, माइक्रोवेव ओवन्स में माइक्रोवेव उसमें भी यूज होते हैं, वाईफाई राउटर्स में भी यूज होते हैं माइक्रोवेव्स। ठीक, तो यहाँ पे लिखा रहेगा सब कुछ। ठीक है, देखो सब कुछ छुपा रहेगा यहाँ पे, जैसे ये लिखा हुआ ड्यू टू देयर शॉर्ट वेवलेंथ्स दे आर सुटेबल फॉर रेडार सिस्टम्स। आ चुका है क्वेश्चन, रेडार सिस्टम में कौन सी यूज होती है, माइक्रोवेव। ठीक है, एंड एयरक्राफ्ट नेविगेशन उसके लिए। ठीक है, इंफ्रारेड नाइट कैमरास है ना, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कैमरास इंफ्रारेड नाइट में करनी है, इंफ्रारेड वेव्स यूज होते हैं। हीट, ऑल द हीटिंग डिवाइसेस जनरली वर्क ऑन इंफ्रारेड वेव्स। विजिबल का तो काम पता ही है हमको देखने के लिए। अल्ट्रावायलेट यूवी रेज, अपने वाटर प्योरीफायर्स एंड ऑल दैट, राइट, यूवी रेज से बहुत सारे क्लीनिंग भी होते हैं, राइट। तो ये सब, तो ये सारे यूसेज आपको मिल जाएंगे। Due to its shorter wavelength, UV radiations can be focused into very narrow beams for high precision applications such as laser assisted surgery। जो आई सर्जरी लोग कराते हैं, कभी कराया हो किसी ने, तो उसका यूवी रे से होता है ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, यूवी लैम्प्स आर यूज्ड टू किल जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर्स। तो इस पे क्वेश्चंस बनते हैं डियर। ठीक है, देन एक्सरेज का हमको मालूम ही एप्लीकेशन, एक्सरे कराते हैं हम लोग जब हड्डी टूट जाती है हमारी कभी, तो ठीक है, कहाँ पे कैसे टूटी है पता करने के लिए। गामा रेज आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सेल्स। तो ये सब आपको रखना पड़ेगा। इसके बाद एक टेबल है,
इस टेबल में यहाँ पे प्रोडक्शन लिखे हुए हैं, कैसे कैसे आप लैब में इनको प्रोड्यूस कर सकते हो। तो डियर, ये प्रोडक्शन भी आपको रट्टे मारने पड़ेंगे, देयर इज नो अदर चॉइस। व्हाट आई एम सेइंग इज कि अभी इसको रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं है, इट इज गोना गेट डिलीटेड फ्रॉम योर ब्रेन, बट इट्स अ गेम ऑफ फेब मंथ। तो फेब मंथ में आप इसको एक बार रटिए और उसके बाद एग्जाम के पहले इसको एक बार रिवाइज करना है और अगले दिन जाके डाल देना है वापस जो भी पूछा गया, खत्म केस। सो ये आपका असाइनमेंट रहेगा बाद का, एंड दिस चैप्टर इज